Now, a legal battle over Telegram's shutdown in India has now reached a major turning point. The Delhi High Court has rejected Telegram's plea challenging the centre's decision to temporarily block the platform ahead of the NEET 2026 re-examination. Now, the court upheld the centre's move to restrict the access to Telegram till 22nd June. And the decision comes amid concerns over possible paper leaks ahead of the NEET 2026 re-examination scheduled for 21st June. Now, Justice Tejas Karya said that the procedure followed under Section 69A of the Information Technology Act that was valid considering the emergency situation. The court also observed that the government had the power to block access to a platform and ruled that the action met the test of proportionality, calling it a necessary and at least restrictive step. And the temporary blocking order was issued following recommendations from the National Testing Agency and the Ministry of Education's Department of Higher Education. Now, the Telegram, however, argued that it had already taken action. The platform claimed that it had removed more than 900 links related to illegal NEET content. And it also said that it deployed artificial intelligence and machine learning tools to detect and remove unlawful material. Now, the centre countered that Telegram's technical structure allows automated accounts and bots to spread bulk messages rapidly and making it extremely difficult to control the circulation of leaked material. And during the hearing, the court also raised a key question. Can access for over 150 million users be restricted because of concerns linked to one group of exam candidates? Well, Telegram's CEO, Pavel Duvor, had also restricted and criticized the move, saying that the action impacts ordinary users rather than those responsible for leaking the exam material. My colleague Piyush Pandey joining me right now to get us more details on the story. Piyush, ये बताइए, जहां तक टेलीग्राम की बात सामने आती है, दिल्ली हाई कोर्ट ने डेफिनेटली सेंटर का साथ दिया है, ये कहते हुए कि सेंटर इज वेल विद इन इट्स राइट टू इम्पोज अ रिस्ट्रिक्शन लाइक दिस अंटिल 22nd जून. बट जहां तक टेलीग्राम के बारे में बात आती है, वहाँ से ये बोला जा रहा है कि सिर्फ वो लोग जिसके माध्यम से नीट या और कोई एग्जामिनेशन के पेपर लीक होते हैं, केवल उनके लिए, बाकी ऐसे सारे लोग जो टेलीग्राम को इस्तेमाल करते हैं उनके लिए इनकन्वीनियंस होगा. इसको कैसे देखते हैं ये कोर्ट? देखिए, हाई कोर्ट ने इस मामले में जो आईटी एक्ट की धारा है उसको आधार मानते हुए केंद्र सरकार की दलीलों को सही माना है और हाई कोर्ट की ओर से इसी वजह से टेलीग्राम की याचिका को खारिज कर दिया गया है और अस्थायी बैन जो 22 जून तक के लिए केंद्र सरकार की ओर से लगाया गया था उसे जारी रखा है. केंद्र सरकार की ओर से कई दलीलें कल पेश की गई थी. उन दलीलों में साफ तौर पर ये कहा गया था कि आतंकवादी कई गतिविधियों और इसके अलावा जो गैर कानूनी वित्तीय गतिविधियां हैं और उसके अलावा कई पेपर लीक और ऐसी गतिविधियां जो टेलीग्राम के माध्यम से की जाती हैं उनसे संबंधित साक्ष्य भी केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए थे टेलीग्राम को लेकर के हाई कोर्ट में. और हाई कोर्ट में टेलीग्राम की ओर से भी दलीलें पेश की गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उन सभी दलीलों को नकारते हुए केंद्र सरकार की सभी दलीलों को स्वीकार किया है और इस मामले में टेलीग्राम की ओर से जो याचिका दाखिल की गई थी उस याचिका को खारिज कर दिया है और सीधे तौर पर केंद्र सरकार की सभी दलीलों को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए बैन को भी सही माना है और अस्थायी तौर पर बैन को 22 जून तक के लिए जारी रखा है. जी, बट पीयूष, एक और क्वेश्चन कोर्ट ने भी उठाया है. There's an area of concern where they have asked that can access for over 150 million users be restricted because of concerns linked to one group of exam candidates. What does Telegram have to say about it? इस मामले में जब कल आर्गुमेंट चल रहे थे तब हाईकोर्ट के समक्ष टेलीग्राम की ओर से जब दलीलें पेश की गईं तब हाईकोर्ट ने ये भी कहा था कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो लोगों के लिए है, ना कि किसी ऐप के लिए है. और अगर लोगों को अपनी बात रखनी है तो कई माध्यम है, सिर्फ टेलीग्राम ही नहीं है. और चूंकि गतिविधियां जो केंद्र सरकार की ओर से टेलीग्राम ऐप को लेकर के स्पष्ट की गई थी हाईकोर्ट के समक्ष और उनसे संबंधित जो साक्ष्य पेश किए गए थे उसके आधार पर हाईकोर्ट ने टेलीग्राम की दलीलों को खारिज कर दिया, यानी कि नहीं माना. और
जो अहम टिप्पणी हाईकोर्ट की ओर से की गई थी वो ऑब्जर्वेशन उस दौरान आया था जब टेलीग्राम की ओर से दलीलें पेश की जा रही थी और केंद्र सरकार की ओर से दलीलें पेश की जानी थी, तो वो एक क्रॉस क्वेश्चनिंग थी, यानी कि स्पष्टता लाने के लिए हाईकोर्ट ने भी केंद्र सरकार से ये सवाल पूछा था। तब केंद्र सरकार की ओर से जो गतिविधियां थी, खास तौर पर गैरकानूनी और आतंकी गतिविधियों में जो टेलीग्राम का उपयोग किया गया, उसे माध्यम बनाया गया, इन सभी दलीलों को पेश करते हुए केंद्र सरकार ने साक्ष्य भी सील कवर में पेश किए थे हाई कोर्ट में। और यही वजह है कि हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की दलीलों को स्वीकारते हुए जो बैन उसकी ओर से लगाया गया था उसे 22 जून तक के लिए जारी रखा है। जी। पीयूष, ये भी बोला जा रहा है कि प्लेटफॉर्म ने ये क्लेम किया है कि उन्होंने 9 से ज़्यादा ऐसे लिंक्स हटा दिए हैं, डिलीट करवा दिए हैं, जिससे लिंक कुछ ना कुछ इलीगल नीट कंटेंट से लीकेज का एक्सपेक्टेशंस थी। क्या 900 लिंक्स ही काफ़ी हो सकते हैं? क्या उससे भी ज़्यादा लिंक्स रियल टाइम लोग क्रिएट कर सकते हैं? जहाँ तक फुल प्रूफ टेलीग्राम मैसेजिंग के बारे में बात आती है, वहाँ पर टेलीग्राम की तरफ से कुछ ऐसे गार्ड रेल्स के बारे में बात रखी गई है सामने? जब केंद्र सरकार की ओर से हाईकोर्ट में ये सारी स्पष्टता ला दी गई कि टेलीग्राम के माध्यम से, टेलीग्राम में कई ऐसी तकनीकी खामियां हैं, यानी कि उनमें जो तिथि है उसका बदलाव किया जा सकता है पिछली तारीख से, और कई बार ऐसा किया जा सकता है कि आप मैसेज भेजें और सिर्फ चिन्हित लोगों को ही दिखाई दे। तो ऐसी कई तकनीकी खामियां थी जो उजागर की गई हाईकोर्ट के समक्ष। और अब जबकि केंद्र सरकार की ओर से अस्थायी तौर पर बैन 22 जून तक के लिए लगा दिया गया, तब टेलीग्राम की ओर से ये कदम उठाया जा रहा है, तो इसे उचित नहीं माना जा सकता, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से पहले भी 2022 और 2025 में भी कई बार टेलीग्राम को चेतावनी दी गई थी और गैरकानूनी गतिविधियों और वित्तीय, खासतौर पर वित्तीय जो गैरकानूनी गतिविधियां इस माध्यम के जरिए चलती हैं, यानी कि टेलीग्राम ऐप के जरिए, उसको लेकर के चेतावनी भी दी गई थी। तो तब उन्होंने इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन जब बैन लगा दिया गया उसके बाद टेलीग्राम की ओर से ये कदम उठाए जा रहे हैं। उम्मीद है कि टेलीग्राम भविष्य में ऐसी गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाएगा, तो शायद भविष्य में उसे ऐसी केंद्र सरकार की कार्रवाई को नहीं झेलना पड़ेगा।